हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 344। संविधान का अनुच्छेद 344 बताता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो चलें स्टार्ट करें। 344 Article says about the Commission and Committee of Parliament on Official Language. Number 1. The President shall add the expiration of 5 years from the commencement of this Constitution and thereafter add the expiration of 10 years from such commencement by order constitute a commission which shall consist of a chairman and such other members representing the different languages specified in the English schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission. Number 2, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to a the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union. Number B, restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union. Number C, the language to be used for all or any of the purposes mentioned in Article 348. Number D, the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union. Number E, and other matters referred to the Commission. Number E, any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and the state or between one state and another and their use. Number 3, in making their recommendations under clause 2, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services. Number 3, in making their recommendations under clause 2, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and the just claims and the interests of the persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services. Number 4, there shall be constituted a committee consisting of 30 members, of whom 20 shall be members of the House of the People and 10 shall be members of the Council of States, to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. Number 5, it shall be the duty of the committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause 1 and to report the President their opinion thereon. Number 6, notwithstanding anything in Article 343, the President may, after consideration of the reports referred to in clause 5, issue direction in accordance with the whole or any part of that report. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 344 अनुच्छेद बताता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में।
नंबर 1, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। क्या कहा जा रहा है 344 अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति, जब जो हमारा संविधान जो प्रारंभ होता है यानी लागू हो जाता है उसके 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। कौन? राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर के तहत एक आयोग गठित कंपोजिट किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। और 8वीं अनुसूची में जो विभिन्न भाषाएं हैं भारत की, यानी अब तो 22 भाषाएं हैं और 14 भाषाओं, जो भारत की जो 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ तभी उनको रख दिया गया था 14 भाषाओं को। तो कहने का मतलब ये है कि जब आयोग गठित करेगा राष्ट्रपति तो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। नंबर 2, आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति को नंबर का संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आयोग का जो कर्तव्य होगा उसकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो क्या होंगी कि वो राष्ट्रपति को नंबर का संघ के शासकीय जो प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देगा। नंबर का संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो, यानी उन पर जो संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो। नंबर गा, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। नंबर घ, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप में। नंबर व, संघ की राजभाषा, संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा, उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किन्हीं अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। अब वहाँ में क्या कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा और संघ और राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो कैसे होगा, कौन सी भाषा में होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या उस राज्य की जो भाषा है उसके माध्यम से होगा। तो इन सब चीज़ों के विषयों के बारे में सिफारिश करेगा ये आयोग। नंबर 3, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है नंबर 3 में, खंड 2 के अधीन की अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक जो तरक्की है, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का जो है और लोक सेवाओं में जो सिविल सर्विसेज के संबंध में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनके व्यक्तियों के न्याय संगत दावे, जो उनके क्लेम्स हैं, उनके इंटरेस्ट्स हैं, उनका सम्यक ध्यान रखेगा आयोग। नंबर 4, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसके लिए इसमें क्या होगा, नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक समिति गठित की जाएगी, एक कमेटी गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसके जो मेंबर्स 30 होंगे। इनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, इनमें से जो मेंबर्स होंगे वो 20 मेंबर्स लोकसभा से होंगे, हाउस ऑफ पीपल्स से लोकसभा से होंगे, और 10 राज्यसभा से लिए जाएंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। नंबर 5,
समिति का ये कर्तव्य होगा कि वे खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे। अब ये जो समिति बनेगी 30 सदस्यों की गठित समिति, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। जो होंगे वे सदस्य क्या करेंगे, समिति का एक कर्तव्य होगा कि वे खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेंगे। उसका जो सिफारिशें हैं उनका एग्जामिनेशन करेंगे, राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन देंगे। ये समिति का कर्तव्य होगा। नंबर 6, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अब क्या होगा कि क्या कहा जा रहा है नंबर 6 में, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन, उस संपूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। ये राष्ट्रपति का काम होगा। अब मैं आगे पढ़ूंगी अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। और हाँ, आप संविधान को ज़रूर पढ़ें, बुक्स खरीदें और पढ़ें अपने घर में, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये लगेगा हमारा संविधान भी है, नहीं तो उल जुलूल की चीज़ों में आप लोग पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं। और अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो वो अच्छा ज्ञान देंगी आपको, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से आपको परिपूर्ण करेंगी। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जब कोई अच्छी किताब आ जाए हाथ में तो उसको ज़रूर पढ़ें। हाँ, संविधान को तो ज़रूर पढ़ें। मैं तो पब्लिक अवेयरनेस जो है उसको बढ़ा रही हूँ। जो हमारे संविधान है, जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ को जानें और अपने देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में, संविधान को बचाने में आगे आएँ और संविधान को बचाने के भागीदार बने। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है और नम्र निवेदन है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।